Diwan sir, please guide us on this important issue. Over to Dr. Diwan sir. A very good afternoon to all of you. Technically, it is not afternoon, it is before 12 still. Thank you very much, Professor Chaudhary and Dr. Vijay Chaudhary and Dr. Srivastava. I have spoken to Dr. Chaudhary already, Dr. Srivastava also already. I recall that when I was a professor in Narsee Monjee, after leaving my naval, that is on the first assignment, was a professor in Narsee Monjee Institute of Management Studies. This I'm talking about 96, 97. And we had called as a chief guest for a function one minister for IT, Javadekar. And you see, my director of Narsee Monjee was Y.K. Bhushan. And I was a professor in charge for entrepreneurship, etc. So the first thing he remarked was, I think in Narsee Monjee, you have to be a Bhushan to get into Narsee Monjee. So I get the feeling to get into GTP setup, you have to be either Professor Dr. Chaudhary or you have to be Dr. Vijay Chaudhary. Is it so? With permission, Dr. Srivastava? Okay. So I am greatly honored to be with you all. I consider myself a student. I like to interact with people and get their views and ideas. It's a very interesting topic you all have chosen. How armed forces impact the national integration of our country. The first thing that comes to my mind is, you know, when the objective is very large, that is the time it automatically leads to unity amongst people who are trying to achieve that aim. If you're trying to climb Everest, everybody tries to pull together. And armed forces, the task is, the dictum is, do or die. I am from National Defence Academy. I was in National Defence Academy, Khanagwasla from 1968 to 1971. NDA motto is service before self. Some of you may know it already. And after July 71, when I left NDA, I was on board a ship, warship, INS Krishna, during war. I saw the war. So right from the word go, the training is organization first. And in fact, after country first, then service, then self, then your own men, and then self. So in any gathering, if you have, whether it is dinner time or any eventuality, have your men eaten, then you eat. So everything is first. It looks like a Gita, you come last. And you know why this happens, why this can happen? Each one is geared. No matter he comes from Tamil Nadu, he's a Tambi, he's a Maratha, he's Punjabi, anywhere. He may come from anywhere. First of all, he comes with a motive that is very larger than life, very much bigger than life, very much bigger than myself. I have to fight an anger. I am working on an aim, I'm working on a canvas which is much bigger than me. You know, like Kargil war photographs you might have seen in Google. Kargil is unfortunate, it had happened in 1999. Already Pakistanis have occupied heights on top. When you climb up on the steep vertical cliff, they are already sitting on top 200 feet away. But when you climb, you know that 50% or 60% will get killed. Why? When you're climbing, somebody sitting on top, even if you throw the stone, you'll get killed. But yet the noble cause, save the country, fight for the country, destroy the enemy. So this is the only spirit which takes us, and therefore you will find in First World War, in Second World War, fighting against Germans, fighting against Italians, like Axis powers. Axis powers in Second World War were who? Germany, Italy, Japan. And so Indian armed forces everywhere have excelled. Only one thing, great spirit. And what is the spirit? How that spirit is inculcated? First of all, from day one, it is clear to me that I am fighting for a larger than life. I am ready for death. So like, you know, Kargil story, Captain Batra, मैं वापस आऊंगा, नहीं तो मैं झंडा चढ़ा के आऊंगा, नहीं तो मैं झंडे में लिपट के आऊंगा. फौज में क्या होता है? लड़ते हैं किसके लिए? नाम
नमक निशान, कुमाऊं रेजिमेंट, नमक आया है, निशान, whether it is kukri or whatever it is, we fight for that. That is integration. And you can only do this first of all when the aim is very large. Dr. Srivastava, he says we got 5,000 students, we are a college. Okay, in next 5 years, we want to become the most excellent college, maybe in Maharashtra in 5 years. In 10 years, most excellent college in India. Then maybe we become a university, become the QS 100. Now, when you go with such a large aim, there is such a great integration. There is such a great joining of forces. Why? We're all fighting for a very large aim. छोटी मोटी बातें हट जाती हैं, पीछे हट जाती हैं. So first requirement of integration is that if you have a large aim. आज क्या है हमारी कंट्री? ज्योग्राफी तो बदल नहीं सकते हम. इंटरनेट में क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री. इसका क्या मतलब है? इंटरनेट में मैं बंदा फ्लोरिडा में बैठा है, चाइना में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, ज्योग्राफिकली कहीं भी बैठा है, मैं उससे टच में हूं. क्या मतलब? ज्योग्राफी इज हिस्ट्री. ज्योग्राफी खत्म हो गई है. पर नहीं, चीन बैठा है ईस्ट नॉर्थ में और ईस्ट में, पाकिस्तान बैठा है नॉर्थ में और वेस्ट में, समुद्र में इंडियन ओशन पूरा एक्सपोज्ड है. हमने इतनी मेहनत करनी चाहिए थी, आर्मामेंट की, बजट की, पैसा नहीं था, विल पावर नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, जो भी था पूरी तरीके से नहीं हुआ. चैलेंज नहीं था, चैलेंज का आंकलन नहीं हुआ, या हमारे पास आपस में टॉप लीडरशिप कुर्सी के लिए लड़ती रहती है, जो भी कारण था वो सब आप जानते हैं. 62 में क्या हुआ आप जानते हैं. पर मैं आपको बता रहा हूं, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ. इंडियन आर्म फोर्सेस की, इंडियन सोल्जर की डू और डाई स्पिरिट और प्रोफेशनलिज्म के पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है. फील्ड मार्शल अयूब खान ने कंट्री संभाल ली. क्या कहते हैं? इंडिया एवरी कंट्री हैज एन आर्मी. पाकिस्तान में आर्मी हैज अ कंट्री के बॉस बन गए. जब कंट्री के बॉस बन गए तो मलाई खाने में लग गए, तो उनको लड़ने का मादा खत्म हो गया, हारते गए. 71 में वॉर हो गया और उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया. तो बात यह है कि प्योरिटी ऑफ ए वेरी वेरी लार्ज एम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर यूनिटी. और आप जानते हैं 62 में ये हुआ. 65 में लाल बहादुर शास्त्री जब थे, आप में जो मैंने बहुत कम लोग थे, सहायक नहीं कोई थे, तो ब्लैकआउट होता था. तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा कि जय जवान जय किसान. और जब लड़ाई आती है हम भारतीयों पे, हम इकट्ठे हो जाते हैं और उस टाइम हम लोग मिल के काम करते हैं. उसके पहले आपस में लड़ते रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मराठा, तंबी, तेलुगु, कश्मीरी. ये हम भारतीय नहीं है. तो ये हमें लेसन कहाँ है? 14 लाख, 1.4 मिलियन, 14 लाख आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. अगर वहां ऐसे टूट हो गए, धड़े बन जाएंगे, हम एक दिन भी नहीं लड़ सकते. मैं पठान हूं, पख्तून हूं. हाँ, पर मैंने पहले क्या कहा? नाम नमक निशान. तो सारी रेजिमेंट के निशान के लिए बढ़ती हैं. अगर कुमाऊं रेजिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लड़ती आई है तो मेरे को उसकी इज्जत रखनी है, अपनी जान देने को मैं तैयार होता हूं. तो लार्जर देन एम, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन मी कैनवस के पीछे लगेंगे आप, तो आप एक्सेल करेंगे और संस्था आपकी भी एक्सेल करेगी. और नेशन भी इंटीग्रेशन कैसे होगा? लार्जर देन लाइफ. और थ्रेट में हम इकट्ठे हो जाते हैं. और थ्रेट परसेप्शन अभी हम बहुत, मेरी समझ में बहुत जरूरी है इस टाइम. तभी एनसीसी स्टार्ट हुई. अभी बात होती है इजराइल में. देखिए, छोटा सा देश है, अगर इजराइल के एक छोर से दूसरे छोर में जेट एयरक्राफ्ट जाता है, 2 मिनट में 3 मिनट में इजराइल खत्म हो जाता है. इतना छोटा सा टुकड़ा है और चारों तरफ से घिरा हुआ है अरब नेशन से. जैसे होता है ना टाइगर पे हाइनाज, आपने देखा होगा वाइल्ड ज्योग्राफी में, टाइगर के ऊपर, लायन के ऊपर 10-12 हाइना अटैक कर देती है. तो टाइगर कैसे बचाता है? फिर बाद में सबको भगा सकता है टाइगर, लायन या टाइगर. तो पॉइंट ये है कि हमें अभी बहुत थ्रेट है, हर जगह से है. और जब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, तालिबान की बात हो रहा, तालिबान देख रहे हैं आप, वर्चस्व ले रहा है, और वो थ्रेट तो बहुत बड़ा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं. एक सिविलाइजेशनल थ्रेट है. हमारी पुरानी संस्कृति हिंदुइज्म, जिसमें क्या मेन चीज क्या है? लिव एंड लेट लिव. मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हैं. अब लाल कपड़ा पहनते हैं, मैं हरा पहनता हूं, मैं नीला पहनता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लिव एंड लेट लिव. मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक है. साइकोलॉजी में क्या आता है? जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आता है ना, टीए में, आई एम ओके. चाइल्ड क्या बोलता है? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. पेरेंट मेरा ओके है, मैं ओके नहीं हूं.
तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। फिर मैच्योर हो जाता है, फिर वो क्या कहता है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। उसमें क्या है, जो डिक्टेटर बनते हैं, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, किलिंग, गलतियां। और स्टेबल कंडीशन क्या है, आई एम ओके यू आर ओके। तो ये साइकोलॉजी में भी उसी के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम इस बात को, इस डायलॉग को नहीं समझेंगे कि हमने लार्जर देन लाइफ एम के लिए काम करना है, इंटीग्रेशन नहीं होगा। और इसी की वजह से फौजें जो है, फौज के अंदर हर धर्म के लोग, हर सेक्ट के लोग, हर जाति के लोग, और वो आते हैं। और वो ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ट्रेनिंग की वजह से पहले तो एम हो, व्हाई आई एग्जिस्ट, बहुत बड़ा एम। फिर ट्रेनिंग, डेली बिहेवियर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जेनेटिक्स से हमारी नेचर आती है, संस्कार आते हैं, फिर एनवायरमेंट से हमारी ट्रेनिंग आती है, तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है उस हिसाब से। तो मिलिट्री के अंदर ये बड़ी भारी चीज क्या है, एक लार्जर देन लाइफ स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एम है। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग, ड्रिल करना। मैं एनडीए में था तो आप समझ लें, एनडीए में तो राजा के लोग, बच्चे भी आते हैं, बहुत अमीर मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं। तो सिविल ड्रेस भी जो पहनते हैं ना, जिसे कहा था मुफ्ती, मुफ्ती, MUFTI, मुफ्ती। सिविल ड्रेस में भी अगर बाहर पूना में जाएंगे खड़गवासला से संडे को, उसे लिबर्टी कहा जाता है, संडे को लिबर्टी में जाएंगे कॉमन ड्रेस में, लाइट ग्रीन शर्ट, ग्रे ट्राउजर और एनडी की टाई, हर बच्चा। मतलब वो डिफरेंस नजर ना आए, यूनिफॉर्म। तो ये अब राजा के घर से आए तो तड़कीले भड़कीले कपड़े पहने, मैं छोटे घर से आया हूं तो मैं ऐसा ना। तो ये भी एक तरीका है कि यूनिफॉर्म। मारुति भी चलाई, मारुति जैपनीज ने क्या किया, मारुति चलाते हैं गुड़गांव में, यूनिफॉर्म। तो डिफरेंसेस खत्म करें। इंटीग्रेशन तो ब्रेड एंड बटर है, ABC है आर्मी का, आर्म फोर्सेस का, नहीं तो नहीं लड़ सकते। अभी क्या है, 71 वॉर में कैप्टन मुल्ला, INS खुखरी सिंक हो गई पाकिस्तानी टॉर्पेडो से। मैं क्षमा करें, मैं पहले सिंकिंग की बात बता रहा हूं, इंटीग्रेशन का पॉइंट है। हालांकि 71 वॉर में तो इंडिया ने चक दे फटे कर दिया है। तो क्या किया, बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। अब कैप्टन मुल्ला, एक मुस्लिम ऑफिसर, खुखरी was sinking, he had the option to jump out to bail out, he did not bail out, he died, he sank with the ship, he drowned with the ship. So if you see our top leaders, चाहे वो सरदार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, they've been all people top to bottom. क्यों? Then only way to forget differences. Integration क्या है? Common goal, common thinking, common behavior. वो जब चीजें होंगी तो एक बड़ा एम तरक्की की ली जा सकती है। एक प्राइड इन नेशन, ये तभी होगा, नेशन का समाज का फीलिंग तभी आएगा, प्राइड। तो क्या हो रहा है, हमारे ये नेशन इंडिया, क्लियरली आर्मी तो एक डेमो है, आर्म फोर्स एक डेमो है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप पूजा ऐसे करते हैं, आप तो नंदुरबार एरिया है, नागपुर एरिया बहुत दूर नहीं वहां से, तो मैं वहां क्या, RSS के भागवत साहब ने कुछ दिन पहले लेक्चर किया, 1.5 महीना पहले, कि मुसलमानों में हिंदू में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सेम DNA है। एक ही फर्क है, हमारी पूजा करने की पद्धति अलग है, आपकी पूजा करने की पद्धति अलग है। तो डिफरेंसेस होंगे, पर समन्वय करके हम चल सकते हैं। और तभी 130 करोड़, 130 करोड़ मतलब 140 करोड़ मतलब दुनिया में हर छठा आदमी, 5वां आदमी भारतीय है। पर अफसोस आज हमारा वजूद दुनिया में ऐसा नहीं है जितना होना चाहिए। We are not able to punch as per our weight. Our weight is too much. Our size is big, but we are not punching that much. हमारा $3 trillion GDP है। और वही चाइना, जब इधर 30 साल 1980 में, 1982 में आप चाइना में जाए तो आपको लगेगा अरे पिछड़ा हुआ कंट्री है। आज $15 ट्रिलियन है। अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और चैलेंज कर चुका है। चाइना तो ऐसे बढ़ रहा है, मनी में भी, न्यूक्लियर पावर में भी, आर्म फोर्सेस में भी, नेवी में, और US से डाउन हो रहा है। तो आप देख लेना 5-10 साल के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, दे विल बी ब्रीथिंग डाउन आवर नेक। ये चैलेंज हमारे लिए है, बहुत भारी चैलेंज हमारे लिए है, और हटेगा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री तो ठीक है और वहीं पड़े हुए हैं हमेशा। अरुणाचल कहते हैं पार्ट ऑफ तिब्बत है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना का। मैं टीवी पे डिबेटों में रहता हूँ काफी, न्यूज एक्स में, इंडिया न्यूज में, जी न्यूज में और जेके न्यूज वगैरह। तो यही मेरा पॉइंट है कि हमारा थ्रेट जो है इट विल नॉट गो अवे। उसका एक ही तरीका है, अभी तो ये इंटीग्रेशन की बात नहीं है, एक ही तरीका है,
कि आपने सुना है जिस राजा की तिजोरी खाली है राजा लड़ नहीं सकता है। अब शिवाजी आए, उन्होंने देखा औरंगजेब चौथ ले रहा है। चौथ क्या है? 25% रेवेन्यू चौथ। तो जब जब तक राजा 25% नहीं रेवेन्यू नहीं लेगा, फौज बड़ी नहीं कर सकता है, लड़ नहीं सकता है। अगर हम इतना कॉस्टली वेपन इक्विपमेंट इंपोर्ट करते रहेंगे, हम नहीं लड़ सकते। ये साइंटिस्ट के ऊपर भी ये चैलेंज की बात है, और हम और वही लोग हैं साइंटिस्ट के ऊपर। ये हम डीआरडीओ, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इस चैलेंज को हम समझें। ये लीडरशिप का काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप, सिटीजन जो है उनका लीडरशिप। इतना भारी चैलेंज हमारे लिए है। बोरोड परचेज वेपन से हम नहीं लड़ सकते। अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हम तो खुद इतना बना सकते हैं चीजें, पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। वी कैन बी अनदर यूएसए एंड चाइना। और हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत चीप है। एमओएम मॉम क्या है? मार्स ऑन मून, मार्स मिशन ऑन मार्स। हमारा खर्चा वो बनाने के लिए, वो जो यान बनाने के लिए था, अंतरिक्ष यान बनाने का था, वो मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में साउथ ऑफ न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एरिया है, वहां जितना फ्लाइट 400 करोड़ जितना हमारा खर्च, एक फ्लैट आती है वहां पे, ठीक है, अगर वो मतलब $60 मिलियन की, उतने में तो हमारा यान बन गया। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो चीप है, तभी टीसीएस, बाकी कंपनियां इतना चीप हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत चीप है। तो दिमाग भी बहुत है, पर हम संगठित नहीं है, हम आपस में मिलकर काम नहीं करते, दिन ब दिन हम डिफरेंसेस देखते रहते हैं। तो ये लीडरशिप का ये काम है कि इंटीग्रेशन लाए, और कैसे? एक बड़ा चैलेंज खड़ा करके, बड़े चैलेंज कम्युनिकेट कर सके और सभी को इकट्ठा लेके जाए, आगे चले। और उसी में ही मैं बता रहा हूं आपको, वही आम आदमी शेर बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, वो नांदेड़ के हैं, आप तो नंदुरबार में हो, तो क्या कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं। तो जब वॉर होता है, जब चैलेंज होता है, तो आदमी के अंदर वो सारी पावर्स निकलती हैं। कहते हैं ना, हम लोग माइंड भी, बॉडी भी, हम 5% से भी कम यूज करते हैं। हमारा पोटेंशियल 95% है। आइंस्टीन ने यही कहा था। रूटीन हम चलते रहते हैं, बुकिंग करनी है, उसको फोन करना है, कॉल करना है, फेसबुक पर टाइम बर्बाद कर दिया हमने, यही करते रहते हैं। तो बड़े चैलेंज के लिए काम करेंगे। कैडेट्स भी इसमें कई मैं देख रहा हूँ, मुझे बताया था डॉक्टर चौधरी, कैडेट्स भी हैं। तो आपने अपनी जिंदगी को, अभी यहाँ 15 साल 18 साल के बच्चे भी होंगे, 40 साल के लोग भी हैं, 50 के भी होंगे। तो आगे के टाइम में आपने कैसे उत्कृष्ट बनाना है, उसका एक ही तरीका है, अपने को आप डीप माइनिंग करो, अंदर से माइंड निकालो, अंदर से ज्वेल निकालो। ज्वेल क्या है? हर एक के पास है। नई थिंकिंग, नई ऊर्जा, हर कुछ कर सकता है। तो वो करने के लिए क्या है, वो हमें, ये इंटीग्रेशन से क्या होगा, ये चीजें आएंगी सामने। यू नो, वॉर प्रोड्यूसेस द बेस्ट, कहते हैं वॉर प्रोड्यूसेस द बेस्ट इन सोसाइटी। व्हाई? एवरीबॉडी राइजेस टू पीक परफॉर्मेंस इस चैलेंज के सामने। और जरूरी नहीं वॉर हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वॉर किए बिना जीत जाए आप। देखिए, अगर आप इतना डर पैदा कर दें सामने वाले में, तो हिम्मत नहीं करेगा। आपने देखा है गली के ऊपर, शहर के स्ट्रीट में, रोड में, कभी 2 बैल लड़ रहे हैं, फूक फूक कर, और जब देखेंगे दोनों बैल कितना स्ट्रांग है, अरे मैं इसको मुक्का सींग मारूंगा, ये मेरे को भी डर रहा है उससे, उसको भी डर है मेरे। लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं चाहिए हमें। लड़ाई किए बगैर तैयारी इतनी हो कि अगला डर जाए, और हम भी, एक स्टेटस कोड है, इसे क्या कहते हैं? डिटरेंस। आप जानते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस में यही बात है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और चाइनीज का तरीका यही है। उनका सन त्सू जो है फिलोसफर, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट, यही कहता था, उनका बोल्ड, तो क्या कहता था, जैसे वेस्टर्न में क्लॉजविट्स है, तो क्या कहता था, ग्रेटनेस इज कि विन द वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव है, एक 5 ईयर प्लान निकल जाएगी, इतना खर्चा आता है उसमें। तो वो, ये हमारे बच्चों के सामने, हमारी हमारी पूरी नागरिकों के सामने बड़ा भारी चैलेंज है कि हम अपने पीक परफॉर्मेंस में काम करें। हम इसमें ना अड़ जाए कि शॉर्टकट, मतलब कैसे कुर्सी मिल जाए, जैसे मैं नगर सेवक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए। फिर हम सिखाते हैं मैनेजमेंट में क्या है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ काम करो, लेस इनपुट मोर आउटपुट। इन बातों से देश नहीं बन सकता है, ये शॉर्टकट वालों से देश नहीं बन सकता है। दूसरा कोई कर रहा हो, करने दीजिए, आज नहीं तो कल वो देखेंगे ये टीचर है, ये तो सिंसियरली काम कर रहा है, पढ़ा रहा है। शॉर्ट टर्म में वो मैं हार जाऊंगा उससे,
प्रमोशन उसको मिलेगा, फॉरेन पोस्टिंग उसको मिलेगी, बट फिर लोग देखें ये काम सिंसियरली कर रहा है, वो टॉर्टॉइज एंड हेयर वाली बात होती है। पर हमारे यहाँ क्या हो गया है, हम लोग भ्रमित होके गिव अप कर जाते हैं और एफर्ट से काम नहीं लेते, नहीं करते। तो सवाल कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का बात है। आर्म फोर्सेस ने एक मॉडल खड़ा किया है, वो चरितार्थ है। वहां जब बॉर्डर में चीन में लड़ रहे हैं, आप देखिए क्या ट्रेनिंग का कमाल है और क्या इमोशनल ट्रेनिंग उसमें है, क्या कमाल है। चाहे वो सांबर खाता है, चाहे वो पंजाबी है, आपने सुना ना उसका 62 वॉर का क्या नाम था, वो सिंगर जो है लता मंगेशकर, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सबने जान गंवा दी, ये गाना है ना उनका लता मंगेशकर। तो एक मॉडल, क्लियर कट मॉडल है कि डिफरेंसेस का मतलब कुछ नहीं है, सब मिल के कैसे करना, ये आर्मी एक मॉडल देती है। और यही मॉडल आपको शायद पता ना हो, अभी नॉर्थ कोरिया तो एक रोग स्टेट बन गई है। मैं तो सऊदी अरेबिया में देखा है कि नॉर्थ कोरिया वो किम वाला जो कोरिया है, उसके बंदे में नॉर्थ कोरिया में काम करने आते हैं, तो वहां पे वो फौजी तरीके से काम करते हैं। तो फौज एक ऐसा मॉडल है। हाँ, ये गलत भ्रमित चीज है कि फौज का मतलब कि दब्बू, कि फौज का मतलब नई चीज नहीं सोचेगा। अभी मैं आपको 71 वॉर का एग्जांपल देता हूँ, नई चीज क्यों नहीं सोचेगा। अभी मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल 71 वॉर का दे रहा हूँ। नेवी का क्या रोल था, क्या इनोवेशन इजाद की हमने, जिसके पाकिस्तान को हरा दिया हमने और एकदम दो टुकड़े बन गया, क्या इजाद किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 71 की वॉर की बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमने उन दिनों नई हमने मिसाइल बोट्स खरीदी थी रशिया से, 2 साल 4 साल पहले। और जब वो मिसाइल बोट खरीदी, उस मिसाइल बोट के ऊपर, बोट कितनी होती है आप समझो, 50 फीट वाइड, 60 फीट वाइड और अबाउट 10-12 फीट, 60 फीट लॉन्ग, 10-12 फीट, 15 फीट वाइड। और उसमें 4 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, सिंपल और कुछ नहीं, तामझाम नहीं। इसे कहते हैं मोर बैंग फॉर द बक, है कि नहीं। अभी आजकल तो कंप्यूटर हो गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा है, मेमोरी मिलती नहीं अपने को, तो चलाने के लिए इतनी मेमोरी चाहिए। तो 4 मिसाइल लॉन्चर पावरफुल, पर हर चीज में खामी होती है। नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। उसमें खामी क्या थी, मिसाइल बोट है, छोटा इंजन है, स्पीड फास्ट है, वो स्मॉल साइज है, पर इंजन की ड्यूरेशन, डीजल इंजन था, वो ज्यादा आवर्स चल नहीं सकता है। अब बॉम्बे में है वो बोट्स, मिसाइल बोट्स, ओसाएम क्लास बोट्स, ओसाएम मिसाइल जो थी उसमें, उनकी समझो 40 शिप टू शिप मिसाइल, शिप टू शिप मिसाइल थी वो, नॉट शिप टू एयरक्राफ्ट, नॉट ऑफ कोर्स सबमरीन आल्सो, शिप टू शिप। अब उन मिसाइल को बड़ी डेडली एक्यूरेसी की मैं बात करूं 71 की, इसमें तो कई लोग, मेरा ख्याल 70% लोग 71 में पैदा नहीं हुए होंगे। मैं फिर से 71 बोल रहा हूं क्योंकि आप ये ना सोचो मैं 1871 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो उसमें वो मिसाइल बोट्स की एंड्योरेंस, टेक्निकल टर्म्स में एंड्योरेंस ऑफ द इंजन इज वेरी लेस, वो जा नहीं पहुंच नहीं सकता है वहां पे कराची तक। तो हम लोगों ने क्या किया, हम पर बीइंग स्मॉल, और चीज आप इसमें, आपके कॉलेज में इंजीनियरिंग भी होगी, फिजिक्स भी है होगी, तो क्या होता है, रेडार क्रॉस सेक्शन का बहुत छोटा था, बीइंग स्मॉल साइज, डिटेक्टेबिलिटी बड़ी, very less detectability, very poor detectability. If it is going, it can't be detected easily by radar. तो वो हम उनको टो करके ले गए ओखा तक, किनको, इन मिसाइल बोट्स। ये ऑन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 3 दिसंबर 4 दिसंबर की रात को वॉर टूटा है, वॉर शुरू हुआ है। और 3 दिसंबर को INS कृष्णा से हम लोग जाने वाले थे, हम कैडेट थे बिफोर बिकमिंग ऑफिसर। एनडीए के बाद 6 मंथ्स ट्रेनिंग करते हैं एज ए कैडेट। INS कृष्णा में 30 कैडेट थे, INS तीर दूसरी शिप थी, वॉरशिप थी और ट्रेनिंग शिप थी, उसमें हम लोग कैडेट थे। तो 3 दिसंबर को हम जाने वाले थे छुट्टी पे। तो 3 दिसंबर सुबह हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने खड़े होके, डेक के ऊपर खड़े होके, आपने टाइटैनिक देखा है ना, टाइटैनिक शिप, डेक पर आके अनाउंस किया फॉलन करके सभी को कि सभी कैडेट्स की जो लीव है 3 दिसंबर से शुरू हो रही है वो कैंसल्ड है, पर हाँ बाहर आप जा सकते हैं। तो 3 दिसंबर रात को हम लोग, मेरे ख्याल सैटरडे था, मुझे याद नहीं, तो खैर हम बाहर शाम के टाइम जा ही सकते हैं। तो लिबर्टी कहते हैं उसे, लिबर्टी पे कोई पिक्चर हॉल में है, कोई कहीं है, गया। रात को 8:30 बजे वॉर ब्रेकआउट हुआ। और मुझे कल की तरह याद है, ये थर्ड नाइट ऑफ 8 PM 9 PM रात को 3 दिसंबर 71, इंदिरा गांधी का रेडियो पे आया कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है और आगरा पे अटैक कर दिया है। कहा तो ऐसे ही जाता है, तैयारी तो 1 साल से हम भी कर रहे थे कि बांग्लादेश को तोड़ना है हमने, क्यों तोड़ना है उसका बाद में बताता हूं मैं।
तो ये आया, सारे मिलिट्री पर्सनल सिनेमा हॉल्स के अंदर, मैं नहीं था, मैं तो शिप में ही था, सिनेमा हॉल्स के अंदर स्क्रीन पे आ गया, ऑल मिलिट्री पर्सनल रिपोर्ट बैक टू ड्यूटी, और ब्लैक आउट। और रात को 11 बजे 12 बजे हमारी कृष्णा सेल कर गई। पर वो अनाउंसमेंट जो थी, वो अनाउंसमेंट क्या थी? ऑलरेडी थर्ड नाइट को हमारा फ्लोटिला कमांडेड बाय एडमिरल कृष्णन, वो जो फ्लीट कमांडर थे वेस्टर्न फ्लीट के, हमारे इंडिया में क्या वेस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट, सदर्न, वेस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट, दो ही फ्लीट है। तो और वेस्टर्न कोस्टल लाइन, वेस्टर्न सी बोर्ड कहते हैं, ईस्टर्न सी बोर्ड, और सदर्न कमांड भी 3 कमांड है। अब तो नए कमांड सिस्टम, मरीन कमांड बन रहे हैं, थिएटर कमांड बन रहे हैं, मैं अभी टाइम होगा बताऊंगा आपको। तो उसमें रात को एडमिरल कृष्णन की जो एडमिरल कुरुविला, आई स्टैंड करेक्टेड, वाइस एडमिरल कुरुविला, ही वाज द फ्लीट कमांडर। रात को 3 बजे 4-5 मिसाइल बोट्स ने अंडर ऑपरेशन पराक्रम के तहत उनका कराची पोर्ट के अंदर 6-7 बड़े बड़े ऑयल डंप्स होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट, पाकिस्तान भी ऑयल इंपोर्ट करता है, हम भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडिया में भी। तो ऑयल तो प्रोड्यूस बहुत कम होता है, पाकिस्तान में है ही नहीं लगभग, इंडिया तो फिर भी थोड़ा बहुत करता है। तो वो सारे उनको डंप्स पे अटैक करके, तो कराची वाज इन फायर। अब कैसे अटैक किया? देखिए, गन से अटैक करना कुछ सेफ्टी इफेक्टिवनेस नहीं है। उन दिनों गन्स भी थी, सरफेस गन्स, मतलब एंटी शिप गन्स, गन फायर। मिसाइल में दूर से खड़े होकर 40 किलोमीटर का वॉर किया आपने। तो फुल कराची वाज इन फायर। दिवाली, मैं नहीं था, दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय पीपल हु वर देयर, और उसमें वो कराची वाज लिट अप। और उसके साथ कराची हार्बर में 7-8 उनकी वॉरशिप्स वो तहस नहस हो गई। सरप्राइज, दे वर टेकन बाय सरप्राइज। तो बेड़ा जो है अंदर ही खड़े खड़े, बाहर निकला ही नहीं, तो घोड़ों को अस्तबल में ही मार दिया, वहीं सारे तहस नहस हो गए। फिर हमने मॉनिटर किया, पाकिस्तानी नेवी ने इनको, बाकी शिप्स को हुक्म दिया कि जो नियर बाय शिप्स हैं, प्लीज डोंट एंटर कराची हार्बर। मॉनिटरिंग होता है, स्नूपिंग होता है इसका, कम्युनिकेशन का, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। तो आप देखिए इसका क्या अहमियत है। और ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है, ये भी इंटीग्रेशन है। क्या इंटीग्रेशन है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम कर रहे थे। इंडिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब यहां से गए थे, पेशवा गए थे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने पानीपत तक, वहां पे हम क्यों हारे? वहां पे लोकल राजपूतों ने और लोकल जाटों ने, सूरजमल, उन्होंने, मराठाओं का पेशवा गए थे, उन्होंने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अब्दाली जीत गया। 1761 की बात है। और उसके बाद क्या है कि हमारे, हम गुलाम बनते के बना, मेजर चीज थी वो, बहुत मेजर, दैट वाज अ मेजर वाटरशेड इवेंट। तो ये कोऑपरेशन होता है, ईगो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरी ईगो पहले है, तो मैं संस्था को, तो आर्मी अलग है, आर्मी का चीफ अलग है, नेवी अलग है, नेवी का चीफ अलग है, हर एक का अपने इंटरपर्सनल ईगो आ जाती है। वो बहुत अच्छा टाइम था 71 में, वो नहीं आई। क्यों? नेवी ने क्या किया, जो सी, नेवी का मेन काम क्या है? नेवी विजिबल ज्यादा नहीं होती, आर्मी विजिबल होती है, टीवी भी दिखती है, पर फुल शिप जो है, शिप इज लाइक ए मिनी सिटी। पर आर्मी का क्या दिखता है? लोग लड़ रहे हैं, अब तालिबान का देखिए, लड़ रहे हैं, मूवमेंट है, टैक्स है, ये है। पर नेवी का काम एक ही है, आप पढ़ना के गूगल में भी पढ़ना, नेवी का काम है टू सिक्योर एंड मेंटेन continued access of sea lines of communication. Sea lines of communication. Sea lines means हमारा रास्ता जो सी का है, उससे दूसरे वॉरशिप्स भी एनिमी की ना एंटर कर पाए, और मर्चेंट सवारी जो है वो ऑयल लेके आ रही है, व्यापार है, वो ही चलता रहे। नहीं तो हमारे पास 10-12 दिन का तो ऑयल रहता है, अगर वो बंद हो जाए तो जैसे है ना, पुराने किले में किला खाली हो गया, रसद खत्म हो गई, सरेंडर करना पड़ेगा। तो मेंटेन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है नेवी का। तो हमने क्या किया, पूरी बांग्लादेश में फोर्सेस थी, 90,000, 1.25 जो भी थी, सरेंडर के टाइम तो 90,000 थी, वो ईस्ट पाकिस्तान में थी। तो एयर स्पेस तो पहले बंद कर दिया था, तो आपूर्ति, सप्लाई वहां से नहीं हो सकती थी, वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान। और सी लाइन से मैक्सिमम जाती है चीजें, वो हमने बंद कर दी। जो बंद कर दी, then you can fight, then you can destroy and win over the Pakistani easily.
जब उनकी सप्लाई लाइंस कट हो जाती है, ये भी समझने की बात है। टूथ एंड टूथ टेल रेशियो कहा जाता है। टूथ टेल क्या होता है? टूथ क्या है? बाइटिंग, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर मीन्स टैंक्स, आर्टिलरी मीन्स गन्स, और टेल क्या है? टेल मीन्स सपोर्टिंग आर्म्स, आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स, इंजीनियर्स तो आर्म्स में आता है, नॉट सर्विसेज में आता है। तो ये क्योंकि वो जाके माइंस भी क्लियर करते हैं, आर्मी की बात कर रहा हूं। तो जब ये आप सप्लाई लाइंस को कट करना, ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर बहुत जरूरी है। आप सप्लाई लाइन बंद कर दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? तो हिटलर क्या है? वो तो यूके पर जीत गया। तो क्या है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यूके का वॉर तो पूरा हारा नहीं वो, पूरा जीता नहीं वो, और उसने एक सेकंड फ्रंट खोल दिया। वो देख अगेन लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इकट्ठे मिलके अगर पूरा यूके को डिस्ट्रॉय कर देता वो, तो वो राजा बन जाता यूरोप का। वो लड़ रहा था, पूरा लड़ नहीं पाया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, छोड़ दिया यूके को और रशिया को अटैक कर दिया उसने। दो फ्रंट खोल दिया उसने। और जब रशिया में फ्रंट खोला उसने, तो रशिया तो बहुत वास्ट कंट्री थी, यूएसएसआर बहुत वास्ट कंट्री। तो आप जर्मनी से जा रहे हैं तो कितने मील, और वो विड्रॉ करते गए, पीछे हटते गए। और जब रशियन फोर्सेस पीछे हटते गए, वो क्या फसलों को आग लगा देते हैं, कुएं में जहर डाल देते हैं। अब आपका जर्मन फोर्स एडवांस कर रही है, टैंक्स हैं, घोड़े हैं, गन्स लेके, कभी घोड़े लेके, गन लेकर, वो 3 महीने 4 महीने जा रहे हैं आप। लेनिनग्राड स्टेलिनग्राड पहुंचते पहुंचते तो 3 महीने लग गए, और वो पानी पीने को नहीं, खाना खाने को नहीं। तो एवरी डे सप्लाई चेन कहां से, खाना कहां से आएगा, एम्यूनिशन कहां से आएगा? पीछे वहां से आएगा। कैसे आएगा? बड़ा मुश्किल काम है। और जब तक सप्लाई लाइन, सप्लाई का इंपॉर्टेंस है, कैसे बिना, यू सी, जिसे आपने सुना होगा शायद, वॉर वाज लॉस्ट फॉर वांट ऑफ ए हॉर्सशू नेल। पहले हॉर्स में लड़ाई होती थी, अब वो राजा जहां, आपने सुना होगा कहानी में कि राजा का जो हाथी है वो हर्ट हो गया, तो राजा उतर के घोड़े पे आ गया, दिखना बंद हो गया। तो फौज ने क्या सोचा, हिस्ट्री में कौन से आता है, रीसेंट हिस्ट्री, लोगों से हमारा राजा ही बढ़ चुका है, पगड़ बच गई, सेना हार गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो, और बिकॉज हॉर्स शू, राजे के और कैसे घोड़े का हॉर्स शू जो नेल होता है, खाल होती है ना लगा, अगर वो नेल नहीं है हॉर्स शू का, वो हॉर्स शू उतर गया, घोड़ा चल नहीं सकता है। तो ये सप्लाई का बड़ा महत्व है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, मैं वॉर में 71 की बात है, मैं आईएनएस त्रिशूल में था 76 में, हमारी एक्सरसाइज हो रही थी। वही मिसाइल हमारे बाद में हमने फ्रिगेट पे लगाई, ओल्ड प्लेटफॉर्म, एक्स यूके से आया हुआ प्लेटफॉर्म, उसमें हमने रेट्रोफिट करके, मॉडर्नाइजेशन करके मिसाइल फिट की। वही मिसाइल 71 में उस टाइम लड़ी हम कर रहे थे एक्सरसाइज। तो 4 शिप्स हैं, कंपटीशन होता है, जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन है, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज का, ऐसी एक्सरसाइज होती है, तभी तो वॉर की तैयारी करते होती है, यू आर रिमेन प्रिपेयर्ड। तो उसमें हमारी मिसाइल फायर नहीं हो पाई। वो कैसे नहीं हो पाई? क्योंकि उस पर्टिकुलर उस टाइम एंड टाइम रिले फेल हो गई, अब फॉल्ट आ गया। तो आप समझिए, छोटे से रिले के लिए यू विल लूज अ वॉर। जैसे कहते हैं ना, फॉर वांट ऑफ ए हॉर्सशू नेल द वॉर वाज लॉस्ट, यू कांट फायर अ मिसाइल। तो ये इंपॉर्टेंस है सप्लाई लाइंस का भी। तो ये सारी हीरो कहते हैं ना, लड़ाई होश से, जोश से भी लड़ी जाती है, होश से भी लड़ी जाती है, दोनों चीज चाहिए। तो ये पूरा तंत्र, ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, बहुत, मिलिट्री को, आर्मी चलाना, आर्म फोर्सेस चलाना, ये खाली ये नहीं कि बस नहीं मर्द मराठा आए ये कर देगा, वो सब तंत्र लेके चलना पड़ता है, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे हम। तो यही चीज हो रही है कि आर्म फोर्स आज के डेट में तो वॉर जो हो रहा है, मोर एंड मोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कम है, स्टैंड ऑफ। अफगानिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते थे, वो तो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब करके अफगानिस्तान को फ्लैटन कर देते, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में किया था अमेरिका ने, वो अलग बात है। पर नहीं तो अफगानिस्तान में फिजिकली आपने ऑक्यूपाई नहीं किया तो तालिबान मजबूत रहेगी। पर ये दिन खत्म हो रहे हैं फिजिकल वॉर के, टेरिटरी का आइडिया भी खत्म हो रहा है, साइबर वॉर, स्पेस वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, बहुत बड़ा वॉर है ये। आपने क्या करना है, आपने कंट्री को बंद कर देना है। मैं मिला था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, यूएसएसआर में कई रिपब्लिक्स थे, 30-32, वो जब टूट गए तो कई के छोटे छोटे देश बने। उसमें जो देश था एक एस्टोनिया, छोटा सा, उसमें कम से कम आप समझ लीजिए 7 मिलियन, 70 लाख आबादी है, बस 7 मिलियन। और वहां पे इतना हाईली स्काइप है उनकी, कई चीजें प्रोड्यूस की, इतने आईटी इंटेंसिव कंट्री है। उनको ये डर लगा रहता है
कि भाई हमारा जो इंटरनेट सिस्टम है अगर ये तोड़ दिया तो कंट्री बैठ जाएगी। आपको पता होगा ये हमारा चेक क्लियरिंग सिस्टम है, हमारी बैंक्स हैं, हमारी ट्रेन्स हैं। और 2-3 महीने पहले चाइना, 6 महीने पहले चाइना मुंबई में पावर सप्लाई महाराष्ट्र में खत्म हो गई थी, तो चाइना ने स्नूपिंग करके हैक करके हमारी पावर सप्लाई बैठ गई। देखिए पावर सप्लाई बैठ गई, खाना आना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, तो क्या होगा? कंट्री विल कम ऑन इट्स नीज, कंट्री लड़ नहीं सकती। और मिलिट्री पावर जो है आइसोलेटेड नहीं है, टोटल पावर से कनेक्टेड है। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी है, आपका मनी कितनी है, तो ये कमिंग गोइंग फॉरवर्ड वॉर इज बिकमिंग अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन, एक वन डिपार्टमेंट नहीं है। तभी इजराइल में देखिए वही आदमी, वही स्टूडेंट, वही क्लर्क, वही ऑफिसर, वो जाके लड़ता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये तो कई लोगों ने बताया है, होगा नहीं। हमारे टॉप आईएएस ऑफिसर्स, उसके ऊपर भी हमारे मिनिस्टर्स, सभी को तो आप उनके बेटों को बोलो जी फौज में आप काम करिए 3 साल। यहाँ तो कंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ तो वॉलंटरी सर्विस है, हम भर्ती खुद स्वेच्छा से ज्वाइन होते हैं। तो अगर वो करेंगे, उनको कंपल्सरी 3 साल वो देखेंगे। सियाचिन में -49 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो रहना ही बड़ा चैलेंज है, आपकी डेथ हो जाए, उसी प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, मतलब आदमी पागल सा हो जाता है। तो ये मतलब ये है कि अगर ये दर्द नहीं है मेरे को कि भाई ये व्हाट डज इट मीन टू बी फौजी, तो पता गलवान में क्यों मार खाई चीनी ने, 20 चीनी मारे गए, 20-40 कहते मारे गए, क्यों 40-45 मारे गए, क्यों मारे गए? सुनिए, चाइना ने 30 साल पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की, क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी, 160 करोड़ है, हम अभी 130-40 है, आपको 10 साल में तो हम उतने ही हो जाएंगे, तो उसको ओवरटेक कर लेंगे। इंडिया में ये तो कमाल है, हम और कुछ प्रोड्यूस करें ना करें, आदमी इंसान बहुत प्रोड्यूस करते हैं। अभी उनकी पॉलिसी जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की, एशियन कंट्री जैसे इंडिया है, नहीं नहीं 2 बच्चे मेरे तो 1 बेटा हो, दोनों बेटे हो जाए तो बस सोने में सुहागा, एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर दो देखा आपने फैमिली में 4 लड़कियां हैं और एक छोटा छोटा बच्चा निकला 15 साल के बाद, बच्चा निकला भी भाई बहनों में, तो हमारे मन में लालसा बहुत है कि सन होना चाहिए। पुराणों में लिखा है, आपको मुख अग्नि कौन देगा, सन होगा वाली बातें, आप परलोक स्वर्ग कैसे सुधारेंगे। तो वहां भी ये लत है चाइना में, सन हो। तो जब सिंगल चाइल्ड नॉर्म किया चीन ने, तो सभी ने फैमिली प्लानिंग करके हर एक का फैमिली में एक ही लड़का है। वहां कंस्क्रिप्शन है, जाओ फौज में 3 साल जाओ, और 3 साल जाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। सभी को नहीं जाना, अमेरिका में सभी को जाना पड़ता है, एबल बॉडी, तो वहां पॉपुलेशन कम है, 300 मिलियन पॉपुलेशन है अमेरिका में। तो ये इंडिया, चाइना में क्या इंसेंटिव है, आप 3 साल जाएंगे फौज में तो आपको स्कॉलरशिप टू स्टडी इन टॉप कॉलेजेस, इस टाइप से कई सहूलियत मिलेंगी, तो लोग आ गए। अब जो सिंगल बच्चा होता है, समझिए आप, वो तो लाड़ में पला होता है, वो तो खड़ा नहीं हो सकता है। अब -50 गलवान में लड़ नहीं सकता है वो, समझिए आप, उनमें लड़ने का मादा नहीं है, वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, इन ए वे कंस्क्रिप्ट आर्मी। व्हाट इज कंस्क्रिप्ट? कंपलसरी इंडियन वॉलंटरी आर्मी है, और सालों साल तो ट्रेनिंग है, और सडनली उनको कम्युनिस्ट का ऑर्डर आया, उनको डाल दिया वहां पे, कहां पे? गलवान में, लद्दाख में, एलएसी में, तो मार खा गए हमसे। तो अगर आज भी इंडिया के अंदर अगर फौजों की अहमियत है, आर्मामेंट में हम पीछे हैं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि विक्रम आप खरीद ले, हम नहीं पहुंच सकते वहां तक। टीवी वाले में तो ऐसे बता देते हैं कि मैच हो रहा है, चीन को छक्के छुड़ा देंगे, ऐसा नहीं है हालत। और सैटेलाइट से, वॉर सैटेलाइट से होगा, वॉर स्पेस से होगा, वॉर स्टैंड ऑफ सिस्टम से होगा, तो वो मैन टू मैन फाइट में वो नहीं कर सकते। क्यों? ये वही मैं कह रहा हूँ, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से वो मतलब पेम्पर्ड चाइल्ड, वो कोमल लड़का है, वो लड़ नहीं सकता है, तभी मार खा रहे हैं। वो तो ठंड में आते हैं, और जब आते हैं हमारे यहाँ से फौजी जाएगा, मैं अभी पिलानी में हूँ राजस्थान में, यहाँ से बच्चा जाएगा, फौजी बच्चा जाएगा, तो माँ कहेगी बेटा तो जा देश की सेवा कर। वहां बच्चा जाएगा तो वो रोता हुआ जाता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या लड़ेगा वो, ये हाल है। पर उसके चलते ये भी है कि अभी आपको मालूम नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस नहीं थी खाली, नेटो की थी, ब्रिटिश की भी थी। ब्रिटिश की फोर्सेस लड़ते नहीं थे, तो तालिबान को पैसा दे देने का, भाई यार लड़ाई मत करो, तुम भी ले जाओ, केक ले जाओ, बंदूक ले जाओ, ये ऐसे चल रहा था। जब लड़ेंगे नहीं, आप लड़ने का मादा नहीं है, तो ये है मतलब बिग चैलेंज which we leaders, we teachers, we teachers are here to see। कोई पेन बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई कैमरा बनाता है, और जो टीचर्स क्या बनाता है? टीचर देश बनाता है।
हमारी रिस्पेक्ट पहले कम थी टीचर्स की, अभी भी कम इसलिए कि हम टीचर्स उस पहुंचे नहीं उस लेवल में, मेरी समझ में, जो हमें सोसाइटी में चाहती है। हम बचपन में थे, मैं तो 62, आई एम 52 बॉर्न, तो मैं जब चौथी क्लास 5वीं क्लास में पढ़ता था हरियाणा में सोनीपत में, तो हमें आज भी याद है टीचर्स की फेस, जो मतलब टीचर वाज लाइक सेमी डेमी गॉड। आज टीचर ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया है। पेरेंट्स के बारे में बच्चा नहीं सोचता है, वो तो फेसबुक नया भगवान है, फेसबुक गूगल फिल्में चल रही, कौन है आप, तो वो एक नया। पर मैं ये कह रहा हूं कि टीचर्स अगर अपनी पर्सनैलिटी को एज ए मेंटर, एज ए एक्चुअल गुरु, तो आप हमारे गुरु क्या थे, त्यागी और ज्ञानी, और किसके प्रति प्यार, ज्ञान। मैं आप पूछिए अपने आप को, आपको ज्ञान अर्जित करने में, ज्ञान बांटने में, नया नया सीखने में मजा आता है? नहीं आता, डेवलप करिए। अगर नहीं आएगा तो आप खुश भी नहीं रहेंगे, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, समाज का भी नुकसान आप कर रहे हैं। पर बच्चा आपका देखेगा, वो फेसबुक देखे, गूगल देखे, वो समझता है सब जानता हूँ, पढ़ना ना चाहे, मैंने देखे चीज फैसिलिटीज है, वर्कशॉप लगाई है, क्या क्या लैब है, बच्चा करना नहीं चाह रहा है। इतना खर्च हार्डवेयर से नहीं होगा। टीचर अगर उस स्पिरिट को लेके आता है तो वो इंस्टीट्यूशन भी एक्सीलेंट बनेगी और समाज भी एक्सीलेंट बनेगा। टीचर को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मैं मानता नहीं हूँ, अभी आपका तो मुझे पता नहीं एडेड है कैसा है, कहीं कहीं अभी तो क्या है कि चैलेंज है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे सामने, स्टूडेंट नहीं आ रहे तो फीस नहीं आ रही, फीस नहीं आ रही तो टीचर की तनख्वाहें कम होती जाती हैं, तो तनख्वाहें कम हो जाती हैं तो क्या है, अच्छे टीचर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। अब कई पीएचडीज हैं यहाँ पर अच्छे नहीं है, उनको कम तनख्वाह में चल रहा है उनका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए टीचर्स के लिए ये है बड़ा भारी एक नोबल कॉलिंग, एक्चुअली नोबल कॉलिंग, और इसमें रिटायरमेंट की बात ही नहीं है। अब ज्ञान के पीछे अगर आप लग जाएं कि ज्ञान की उत्कृष्टता मैंने लानी है, तो मैं कहता हूं आपकी तो लिमिट ही नहीं है। नहीं तो आदमी क्या सोचता है 60 साल के बाद, झाला, क्या बस हो वह हो गई क्या, झाला 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 हो गया तो मर गया, पत्थर बन गया। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एंजॉय योर लाइफ, यू हैव योर इंपॉर्टेंस, पीपल लुक अप टू यू। लर्निंग क्या है? अगर आपका बेटा फेसबुक में घूम रहा है, आपको नहीं आता है गूगल शीट कैसे बनाते हैं, सीखिए। ये नहीं कहिए मैं तो राजा हूं, मैं तो सब पता है, मैं फेल कर दूंगा, नंबर दे दूंगा। टीचर को एटीट्यूड बदलनी है। तो समाज बिल्ड करने के लिए हम लोग टीचर्स जो है बहुत फॉर्चुनेट है, हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी है इसको बनाने की, समाज को बनाने की। मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को बनाने के लिए एटीट्यूड भी चाहिए और एक्चुअल ज्ञान भी चाहिए। एक्चुअल ज्ञान में हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, हम किताब में घुस जाते हैं। मैं टीचर्स में वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो मुझे पता है कि अगर हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट वाला क्या समझता है, वो भी अकड़ा हुआ नखरेबाज है, वो समझता है तो किताबी आदमी। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका की सक्सेस, कॉम्पिटिटिवनेस के पीछे क्या सीक्रेट है? वेस्टर्न कंट्रीज, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, कॉम्पिटिटिवनेस, इतनी कंट्रीज इनोवेशन ला रही हैं, इन्वेंशन ला रही हैं, इतनी इंप्रूवमेंट ला रही हैं, क्या सीक्रेट है? एक ही सीक्रेट है, big unification, big integrity, integration between the corporate world, business world and academician. अगर ये होगा तो हम, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले आप चैलेंज बताएं हमें, हम रिसर्च करके आपको याद करें तो यूज करें। वी आर पार्टनर्स इन बिल्डिंग द सोसाइटी। I prepare people, I invent, come out with new knowledge, I do research, I help you. Most of the projects are being, मैं IIT से MT किया है मैंने, तो निवी ने मुझे भेजा था, मैं आई वाज गुड स्टूडेंट, तो मुझे भेजा, कहीं हर एक को नहीं भेजा जाता है। तो IIT को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। IIT रुड़की नामी है सिविल इंजीनियरिंग, तो हर बड़ी बड़ी कंपनी जो रोडवेज बनाती है उनको सर्टिफिकेट लगता है IIT रुड़की का, तो वहाँ प्रोफेसर हैं। तो मनी भी चाहिए, लक्ष्मी सरस्वती भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, तो उनका इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपका अपना एक वजूद बनाते हैं कि आई एम ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फिजिक्स, आई एम ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिस, एक ही चीज पकड़े, तो क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होने वाला है कि वो तभी आप पीछे पूछ के आ जाएंगे। अभी आप छोटा सा रेस्टोरेंट देखो, चाइनीज, मुगलई, लीबियन सब फूड अवेलेबल, इसका कुछ अवेलेबल नहीं है। आप स्पेशलाइज करें एक चीज, आप एक्सीलेंस को लेके आएंगे तो लार्जर देन लाइफ एम बढ़ेगा, तो देश ऐसे आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम तो $3 ट्रिलियन, अभी देखिए टीवी पे कोई बातें करके या मतलब ये मीडियाबाजी से कुछ होता नहीं है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको पता है। तो उसमें क्या है कि एक्चुअल हमने काम नहीं किया और हमारे सामने एग्जाम्पल क्या आ रहा है? अरे
जरा सा मलाई खाई, इधर उधर काम किया, एमएलए बन गया, बंगला गाड़ी, अब तो लाल बत्ती मुद्दे हटवा दिए, अजय सारी उम्र के लिए पेंशन दी है। जब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल, हमने काम क्यों करो, शॉर्टकट लो यार, इलेक्शन में बन जाओ, सब ये। पर ये मैं बता रहा हूँ कि टीचर्स के ऊपर ये टीचर संभाल सकते हैं। और कई की तो बड़ी खुशी की बात है, टर्की में वो प्रोफेसर था, वो अर्डोगान प्रोफेसर था पहले, तो मुझे कभी खुशी होती है भाई हम लोगों में से किसी का चांस लग सकता है। अफगानिस्तान में गानी को तो भाग गया, भगोड़ा निकला, वो प्रोफेसर था वो। तो टीचर है, पोलैंड में, जब वो पोलैंड में कम्युनिस्ट रिजीम हटा, वो प्रोफेसर था या शिप यार्ड में काम करता था। तो मतलब हमारे ऊपर ये चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम समझें तो हमारी जिंदगी भी उत्कृष्ट होएगी, हमारे बच्चे भी हमारे से बहुत खुश होके आगे जुड़ेंगे और जुड़ना चाहेंगे, तो हमारी बिजनेस भी बढ़ेगी, हमारी एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए कॉलेज रेवेन्यू बढ़ेगी। तो मैं लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये तो बड़ा क्लियर चीज है। हमारे आप कैंटोनमेंट में चले जाएं तो जैसे एंटर करें आप, मैं अभी तो पहले लेफ्ट में आपको मिलेगा मंदिर है, मंदिर की दीवार के बाद जो मस्जिद है, उसके बाद गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, और जो कमांडिंग ऑफिसर है वो मंदिर में भी जाता है और वो गुरुद्वारे में भी जाता है। तो ये इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा मॉडल आर्म फोर्सेस कर रही है। और वही है, फौजी जब जाता है गांव में, वहां पर रिटायर होके, 14 लाख तो फौजी है, 1.4 मिलियन सर्विंग में, और ऑलमोस्ट 2 करोड़ तो हैं जो रिटायर्ड है। वो बड़ी पावरफुल रिसोर्स है, और रिटायर्ड फौजी को पेंशन भी मिल रहा है। तो अगर आप उनको जोड़ते हैं आपस में, उसमें वो आपके बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। वो रिटायर्ड फौजी को मतलब ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, उसकी स्किल को यूज कर सकते हैं आप। भाई वो क्या करेगा फौजी, उसको ट्रेनिंग से यह है कि झूठ नहीं बोलता है, चुंगियां बराबर नहीं होती। ट्रेनिंग से क्या है, आपको रिपोर्ट पूरी करेगा क्या हो रहा है, भाई ये आज नहीं हुआ कल करूंगा, आपको दिल जान लगाए काम करेगा। ये हो सकता है कि अभी 6 आदमी है काम नहीं करना चाहते, वो काम जान लगाए करेगा, अगले आदमी कहता पागल आ गया यार, काम कर, हमारा काम बढ़ा दिया, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। पर इसको आप ये मार्शलिंग, यूटिलाइजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ सोसाइटी में फौजी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये नेशनल इंटीग्रेशन भी और नेशनल डेवलपमेंट भी। तो उसके लिए हम ये अपने बच्चों को भी एज टीचर्स, हम स्टूडेंट्स को भी ये एक मादा दें कि आप मिलके करें, और आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से क्या होता है, फिर मिलके करते हैं, और कॉमन डाइनिंग मिलके करते हैं, यूनिफॉर्म मिलके करते हैं। उससे so आपने नॉट ओनली लार्जर ऑब्जेक्टिव बट एक्चुअल बिहेवियरल थिंग्स आल्सो, यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ यूनिफाइंग एंगल टू दैट, बट विदाउट किलिंग द इनोवेशन। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 71 वॉर में भी हमने किया, इनोवेशन किया। ये नहीं एट द अल्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, we can't kill innovation, otherwise we will suffer in our competitiveness. Both are required. तो पूर्वाग्रह नहीं चले, ये फौजी है तो ये तो सैल्यूट मार सकता है, ये है ऐसा कर सकता है, हर एक को लेके आगे चले, और टीचर को बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और आप तो बहुत बड़े, अपनी संस्था है, 5000 स्टूडेंट बहुत होता है। और आई थिंक मेरा टाइम शायद 45 मिनट्स हो गया है, मुझे डॉक्टर चौधरी ने ये बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर सारे साइलेंट है, किसी का, अभी मैं डॉक्टर चौधरी को देख रहा हूँ मूव कर रहे हैं, डॉक्टर तरदास का फेस है, बाकी सबके म्यूट किए वीडियो, तो मुझे पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सेशन हुआ सर, वी आर लिसनिंग, ऑल आर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड मेरा टाइम खत्म हो गया है। उसमें एक्चुअली वो क्या था कि वो कोरियन वॉर में, माय टाइम हैज कम, कोरियन वॉर में वो कोरियन ऑर्डरली था, अमेरिकन ऑफिसर का ऑर्डरली होता ना फौज में, तो मॉर्निंग में उसने बोला, वो अंग्रेजी ठीक से आते नहीं थी बेचारे को, कोरियन था वो, तो सुबह से वो उठाएगा लेफ्टिनेंट को उठाने, अब लेफ्टिनेंट योर टाइम हैज कम, तो किसी गोली लगने वाली, टाइम हैज कम, ये मेरा टाइम हैज कम, 45 मिनट्स हो गए। थैंक यू वेरी मच, and grateful to Dr. Srivastava, Dr. Chaudhary, and Principal Chaudhary, and Dr. Tarakdas. And I don't know the other gentlemen also on this, which I could meet up in this which you had given me, and this Raghuvanshi Saab and Patil Saab, all that. I think they may not be here. Okay, thank you very much. All the best. Thank you, sir. Thank you very much for excellent deliberation on national integration. Sir, आपने सभी आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ शेयर किए हैं,
और हमारे चेयरमैन साहब की रिमार्क्स भी आने वाले, लेकिन सर उसके पहले 49 महाराष्ट्र बटालियन अमलनेर एनसीसी के हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विवेक भटारा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस मैं उनका नंदोबार तालुका विधायक समिति जीटी पाटिल महाविद्यालय एनसीसी और स्पोर्ट्स यूनिट की ओर से स्वागत करता हूं, और वो हमारे बीच रहकर हमें अपने महत्वपूर्ण शब्द से हमें मार्गदर्शित करेंगे। लेकिन सर उसके पहले भूषण सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से नेशनल इंटीग्रिटी को इतना अच्छा कंपाइल करके सबके सामने एक आसान तरीके से रखा, उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, इंसान नजर आए। सर, thank you. Now I will invite our respected Colonel Vivek Bhatara sir to express his valuable words. Please sir, over to Bhatara sir. Jai Hind everyone. I am Colonel Vivek Bhatara. I am commanding 49 Maharashtra Battalion at Amalner, and Lieutenant Vijay Chaudhary is one of my ANOs. I would like to thank him for organizing this wonderful session. I am unfortunately on leave in Pune, so I could not join in time, but I for the last half an hour I am with sir and listening to Commander Diwan's wonderful and very energetic explanation of this topic. Sir, I would like to thank you from the core of my heart for giving us a talk of your personal experiences and some lovely and very, very pertinent examples from across the globe on this very, very pertinent topic. My compliments to you, sir, for guiding and motivating these cadets, the ANOs, the staff of the people who had joined in. I'm grateful to you for being the main speaker in this webinar, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. And we look forward to having you on some more occasions on topics related to defense strategy and sir, present emerging global situations, which will open our minds, horizons, and increase our knowledge of the cadets who are going to join the wonderful family of the forces. Thank you very much, sir. Thank you very much. It will be my privilege and pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, Thank you. for motivating us, and you have been always inspiring us for conducting such programs, and we tried our best, sir. Thank you, Vivek Bhatara sir, for motivating us to conduct such programs all the time. And now I will hand over the session once again to chairperson of this session, Principal Dr. N.D. Chaudhary sir, for your valuable remarks. Thank you, Dr. Chaudhary. I am thankful to Honorable Dr. Bhushan Diwanji for providing us information about the war which was happened in 1971. Then what is national spirit, what is national integration. He cited the example of Colonel Batra in Kargil war, that what he said, that झंडा चढ़ा के आऊंगा या झंडा लिपट के आऊंगा. So this type of statements really inspire us. If we see the movies like the Gunjan Saxena is there, then the recent movie which was Surgical Strike. When the common man, when the citizens of India watch such type of movies, they get themselves inspired that no, the military and the sports, only these two things are there which unite the people. And sports is not so important as military, because we know that our security is totally depend on military activities. Friend, military is not only providing security to us, but even when we face natural calamities, when there are disasters, then in that situation, the government first call the military only. So the army people are there who immediately help the common man, and they try to give all type of protection which is needed in the disaster situation. Even we know that when we are facing, the whole world is facing COVID-19 situation, and this pandemic has been disturbed the life of each and every citizen.
But even in COVID-19 situation also, our Indian Army, they provided us security, and because of that only the government and all other agencies were able to control this pandemic. Then if we see the question of internal security also, recent example is of the Afghanistan, that there is no external aggression on that country, but whatever disturbance is there, that is because of only their internal security issue. Because these Talibanis have they captured the power of the Afghanistan, which was happening in Pakistan also. Honorable the Diwan sir rightly pointed out the example of the Pakistan, that the military should not involve themselves in the politics. What happened in Pakistan, that the military generals, they capture the position of they themselves become the president of Pakistan, and because of that it affected the military spirit of the Pakistan. But fortunately this is not there in our country. Our military is involved only in the military activities, they are not interested in the politics. Batraji rightly point out he cited all the examples which were there in the China war, then in Pak war. He has given the example that we have 14 lakh military armed forces, but in among these 14 lakhs we cannot say that this percentage of the Punjabis, or these are the Tamils, or these are the Marathas. So all are united, they are only military person, they are only army person. So caste, creed, religion is immaterial for the military. So I am thankful to Honorable Dr. Bhushan Diwanji for providing us information about this, what is the role of military in national integration. I am thankful, sir, and I hope that in future also you provide us an opportunity to listen on this very important topic. Your speech really inspired our student also. So once again, Vivek Batraji also for joining in today's sessions. So thank you all. Over to Dr. Chaudhary. Thank you, sir. Thank you very much for focusing on the important aspects which our Honorable Commander Bhushan sir has delivered here. कहूंगा कि हमारे जो फौज है, फौज ने अपना योगदान देके इस देश की अखंडता को कायम रखा है, और उनके लिए मैं दो शब्द कहूंगा, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है. Thank you very much, sir. Now moving to the ending of this, or ending part of this national webinar, I express my deep sense of gratitude towards all the dignitaries who spared valuable time, especially in the morning session for the inaugural session, Dr. Makram Joshi, who inaugurated this webinar, who really inspired us with his valuable views on sports and integrity. And then after Professor Jogi sir, who also really inspired us by giving the valuable ideas regarding sports and integrity. And in the second session, I'm really thankful Commander Dr. Bhushan, who really focus on the really inspiring words for our cadets and our ANOs also, will definitely to command, and then they will definitely prepare such young generation who will maintain this integrity of India, our country. Sir, for thank you, and I'm grateful on behalf of Nandurbar Taluka Vidayak Samiti, D.T. Patil College, for sparing valuable time for us, especially again two chairperson of two different session, Chalse sir, Principal N.D. Chaudhary sir. I'm thankful for sparing valuable time, and my special thanks to my friend Dr. Upendra Daddage, who connected us to Commander Dr. Bhushan sir, and we got this opportunity to invite him. And all my colleagues, my staff, my administrators who motivated us, who supported us for conducting such webinar, especially my commanding officer, Colonel Bhatara sir, who spared valuable time with us. So thankful to all the people, all the participants who patiently listen all the things and sparing the time, full time with us. Thank you very much. Thank you, sir. With the permission of chair, I declare this session and this webinar is over now. Thank you very much. Our feedback link will be shared on group
and then the certificates will be given to the participants. Thank you, sir. Thank you very much.